Very good morning to you all. This is Arvind Rai from LPM Public School, which is situated in Gola Bazar, Gorakhpur. And as you all know, I am a subject teacher of Social Studies. And in today's video, we are going to start some new topic from our book. Okay? And today we will start from our civics section, and that is first chapter of civics, that is diversity. Okay, before starting to the topic, I hope that you all are good at your homes and preparing for your exams, and you are also precautious against COVID-19 and you are safe and healthy at your homes. Okay, now please come to the topic, that is diversity. Okay, we are going to start the chapter, that is diversity. Okay, this is the first chapter of civic section, and we had completed each and every aspect of this chapter as well as the exercise part, the reading, explanation, everything we had completed in our physical classes. But then also this time is for revisional videos. This time is to provide some revisional concepts videos to you to be prepared for your exams. Okay, so in that scenario we are doing this work. So you can see on page number 219, first of all you should understand the meaning of diversity. ओके, डाइवर्सिटी को हिंदी में विविधता कहा जाता है. ओके, विविधता ऑफ डिफरेंट टाइप्स. ठीक है, कई अलग अलग प्रकार की चीजों का होना उसको विविधता कहा जाता है, विविध रूप कहा जाता है. और इंडिया को, हमारे देश को एक विविधताओं का देश कहा जाता है. ओके, अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज. ये चीजें मैंने आपको क्लास में भी समझाई हैं, कई बार इसको एक्सप्लेन भी किया है. ओके, डिस्कशंस हुए हमारे आपके बीच में. सो आई होप दैट यू ऑल आर वेरी मच फेमिलियर टू दिस टॉपिक. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू अ बुक, द स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इज कॉल्ड डाइवर्सिटी. ओके, उस स्थिति को जब हम एक दूसरे से अलग होते हैं उसे हम डाइवर्सिटी कहते हैं. डाइवर्सिटी कैन बी इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ. ओके, in your class you will find children who speak different languages, celebrate different festivals, like to play different games and study different subjects. When you go to a shop to buy a pen, you will find different varieties of pens. Okay, you can choose the one that suits your requirement. Okay, suits your desires, suits your needs. Diversity is present in every field of life. It adds variety and makes our life more interesting. Okay, for example, we can have diversity in every aspect of life. Okay, if we are talking about our country, if we are talking about our country's physical aspects. Okay, अगर हम फिजिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करें तो हम पहले भी इसमें पढ़ चुके हैं अपने एसएसटी में कि हमारे इंडिया के जो रीजन्स हैं वो फिजिकली भी डिवाइडेड हैं, स्टेट वाइज भी डिवाइडेड है, हमारी लैंग्वेज के आधार पर भी हम डिवाइडेड हैं, हमारे फूडिंग हैबिट्स के हिसाब से भी हम डिवाइडेड हैं, हमारी क्लोथिंग मैनर्स जो है उसके हिसाब से हम डिवाइडेड हैं, फेस्टिवल्स जो हम सेलिब्रेट करते हैं उसके हिसाब से भी हम डिवाइडेड हैं. एंड at every concept we are divided from, we are separate from each other. So this separation or being different from one another, this state is called diversity. इसी स्थिति को हम डाइवर्सिटी कहते हैं या विविधता कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी दुकान पे जाते हैं, सपोज दैट हमें पेन लेना है, पेन खरीदना है अपने लिए, तो स्टेशनरी शॉप पे जाते हैं और वहां पे कई कंपनीज के वैरायटी ऑफ पेन्स होते हैं. ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए होता है जो हमारी नीड के हिसाब से हो, जो हमारी डिजायर्स के हिसाब से हमें सूट करता हो, जो हमारी पर्सनैलिटी के हिसाब से. बहुत सारी उसमें चीजें होती हैं जिसमें हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं और किस तरीके का पेन चाहिए उसी हिसाब से हम अपनी डिजायर्स, अपने नीड्स के हिसाब से एक पर्टिकुलर पेन को चूज करते हैं. तो वहां पे क्या है, पेन्स की भी हमारे पास बहुत सारी रेंज देखने को मिलती है, तो वो डाइवर्सिटी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन्स. Another pen or some other pen is different from
फ्रॉम वन अनदर, सो वहां पे क्या होगी, डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। उसी तरह से हमारे जीवन के हर एस्पेक्ट में, हर जगहों पर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ओके, सेकंड टॉपिक इज डाइवर्सिटी इन इंडिया। Diversity in India. After that, we are going to complete our next topic, that is the history of diversity. The history of diversity, and after that, kinds of diversity. Kinds of diversity. Okay, and after that we are having unity in diversity. Unity in diversity. Okay, and last but not the least, be a responsible Indian. Okay, the last topic is be a responsible Indian. Okay, so these are the topics we are going to cover in this chapter's revisional discussion. So first point is diversity in India. हमारे इंडिया में अगर डाइवर्सिटी की बात करें तो किन किन चीजों में हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है भारत में, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। सेकेंड टॉपिक इज द हिस्ट्री ऑफ डाइवर्सिटी। हमारे देश में या डाइवर्सिटी की हिस्ट्री की अगर बात करें तो उसकी हिस्ट्री क्या थी, कैसे डाइवर्सिटी को हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के काइंड्स कितने होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू रीड। आफ्टर दैट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता में एकता। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज बी अ रिस्पॉन्सिबल इंडियन। एक भारतीय के तौर पे हम किस तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं, एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं, एक जिम्मेदार भारतीय बनते हैं। ये सारे टॉपिक्स, these topics are going to be discussed in this video, or we can say that in this chapter. So first of all, if we are going to discuss in diversity in India, India is a country of diversities. Diversity has been one of our most remarkable features. People belonging to different religions and speaking different languages live in India. And speaking different languages, okay, sorry, I repeated the same line. Next line is, however, in spite of this diversity, a basic unity binds us together. This lends us our identity as Indians. People of India are Indians first, all other identities come later. Underlying the spirit of unity and diversity determines our identity as Indians. It is also an integral part of our heritage. Okay? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में हर एक एस्पेक्ट के हिसाब से, हर एक चीज़ों में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम एक प्रोमिनेंट मुद्दे के ऊपर बात करें, एक मजबूत मुद्दे के ऊपर बात करें, तो एज इंडियंस वी आर वन। अगर नेशनैलिटी की बात करें, ठीक है, तो नेशनैलिटी के आधार पे हम सभी एक हैं। भले ही हम अपने राज्य के आधार पर, अपने धर्म के आधार पर, अपने क्षेत्र के आधार पर, अपनी संस्कृति के आधार पर, अपने त्योहारों के आधार पर हम बटे हुए हैं, लेकिन जब हमारे देश की बात आती है तो हम सभी मिलकर एक होते हैं। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। जो हमारी पहचान है एक नागरिक के तौर पे, एक भारतीय की होनी चाहिए, ना कि हम अपने विविधताओं के आधार पर अपनी पहचान को बनाएं। और यही हमारी हेरिटेज, हमारी संस्कृति भी कहती है। ठीक है, so this is the most important identity of a person in a country or in India.
Later on, any identity comes, but first we are Indians. Second topic is the history of diversity. Okay, you can see all these topics in your book on page number 219. In the history of diversity, in the past, India was a very rich country. People from different parts of the world came to India to control its wealth. Gradually, they settled down and mingled with people living here. You will read more about on this in history lessons. People who came from outside adopted certain elements of our culture while retaining some elements of their own cultures. Okay, this intermingling of cultures led to the emergence of new languages, dance forms, schools of music and paintings, new cuisines and religion. Different cultures thus influenced one another and brought about diversity. ठीक है, अगर हम डाइवर्सिटी के हिस्ट्री की बात करें तो हमारे देश में इतनी जाति विविधताएं आए कहां से? ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो पहले के समय में जो हमारा देश हुआ करता था वो बहुत ही समृद्ध, बहुत ही रिच हुआ करता था, बहुत ही अमीर हुआ करता था। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, जो प्लांट स्पीसीज थी, वो हमारे यहाँ बहुत ही समृद्ध थी, बहुत ही हम वेल्दी थे इन सारी चीज़ों के मामले में। तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व से कई सारे आप कह सकते हैं कि ट्रेडर्स, दे केम हियर फॉर बिजनेस पर्पस, फॉर ट्रेडिंग पर्पस, बट दे सेटल डाउन इन इंडिया। ओके, वो बाहर से आए यहाँ पर ट्रेडिंग करने, लेकिन यहाँ की संस्कृति में वो घुल मिल के यहीं के रह गए और उनके यहाँ रहने के कारण क्या हुआ, उनकी संस्कृति हमारी संस्कृति के साथ इंटरमिंगल्ड हो गई। ठीक है, हमारी संस्कृति के साथ बाहरी संस्कृतियों का मेल मिलाप हुआ, इंटरमिंगलिंग हुआ, और इस प्रोसेस की वजह से क्या हुआ, वहाँ के कल्चर्स, वहाँ के फूडिंग मैनर्स, ओके, वहाँ के क्लोथिंग मैनर्स, अलग अलग देशों के क्लोथिंग मैनर्स, अलग अलग देशों के फूडिंग मैनर्स हमारे देश के कल्चर के साथ मिक्स हो गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमारे देश में डाइवर्सिटी की एक बहुत ही वैरायटी, बहुत ज़्यादा वैरायटी फॉर्म हुई। एक तो हमारे ही देश में इतने सारे रीजन्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, उन 28 स्टेट्स का अपना अपना कल्चर, अपना अपना हेरिटेज, अपना अपना रिलीजन, फेस्टिवल, व्हाटएवर वी कैन से, फूडिंग मैनर, क्लॉथिंग मैनर, और उसके साथ साथ क्या हुआ, बाहरी देशों के भी जो कल्चर्स थे वो हमारे कल्चर्स के साथ मिक्स हुए। सो वी गॉट मेनी टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटीज इन आवर कंट्री। सो दिस वाज द रिजल्ट ऑफ हाउ we got this much of diversity in our country. So this was the history regarding diversity. Next topic is kinds of diversity. मतलब diversity के कितने प्रकार हैं? ठीक है, India is a land of enormous physical diversity. There are the lofty Himalayas, fertile plains, the Deccan Plateau, vast coastal areas, the arid Thar desert, and many other landforms. The existence of India as a nation depends on the interrelation of different regions and their dependence on one another. Rice and wheat, the staple food of the country, is grown in the fertile plains. The mountains are a source of many rivers. Coastal areas provide fish. The Deccan Plateau grows cotton and is also a storehouse of essential minerals. A person living in Delhi will get coconut grown in the coastal areas, while a person living in the coastal areas will eat rice grown in the northern plains only because the different regions of the country are connected to each other. So what does it means? अगर हम अपने फिजिकल लैंडफॉर्म्स के बारे में बात करें, फिजिकल विविधताओं के बारे में बात करें, फिजिकल डाइवर्सिटी के बारे में बात करें, तो फिजिकल डाइवर्सिटी के आधार पे हमारे देश में 5 तरह की इंपॉर्टेंट फिजिकल लैंडफॉर्म्स हैं। सबसे पहले हम हिमालयन माउंटेन रेंज की बात करेंगे नॉर्थ में। इन द नॉर्दर्न मोस्ट साइड वी आर हैविंग द लॉफ्टी हिमालयाज, जो विशाल पर्वतों की श्रृंखला है, जो हिमालयन पर्वत श्रृंखला है, सबसे पहले वो आता है। उसी के जस्ट साउथ में क्या आता है, नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स का भी जो एरिया है वो बहुत ही वाइड है, बहुत ही वास्ट है। ओके, उसी के जस्ट साउथ में क्या आता है, डक्कन प्लेट्यू। डक्कन प्लेट्यू या पेनिनसुलर प्लेट्यू भी हम कहते हैं। ये एक तरह से अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है डक्कन प्लेट्यू का। ओके,
ये एरिया जो है वो कॉटन के लिए बहुत ही रिच है। उसके बाद हम बात करें तो कोस्टल प्लेन्स की, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कोस्टल प्लेन्स हैं इंडिया के, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द ग्रेट इंडियन डेजर्ट दैट इज थार रीजन। ओके, तो 5 तरह के लैंड फॉर्म्स, 5 तरह के फिजिकल लैंड फॉर्म्स या फिजिकल डाइवर्सिटीज देखने को मिलती है इंडिया में, और सभी का क्या है अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व है, बहुत ही ज्यादा महत्व है हमारे इंडियन कल्चर में, जहाँ पे माउंटेन्स हमें कई तरह के मिनरल्स और हमारे देश के लिए कई सारी नदियों का उद्गम स्थल बनते हैं जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, हमारे क्रॉप्स के इरिगेशन के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए। एंड मच ऑफ द मिनरल्स वी गेट फ्रॉम द माउंटेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स की अगर बात करें तो वहां से हम कई तरह के प्रमुख क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, क्योंकि जो फर्टाइल प्लेन्स होते हैं, जो मैदानी क्षेत्र हैं, जो फर्टाइल रीजन के हैं, वहां पे हम कई तरह के क्रॉप्स ग्रो करते हैं और ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई किए जाते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप इज राइस एंड व्हीट। व्हेन वी टॉक अबाउट डेक्कन प्लेटू में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्रॉप ग्रो होता है वो कॉटन। कॉटन की उपयोगिता आप जानते हैं कि किन किन चीजों में कॉटन इस्तेमाल किया जाता है, खास करके हमारे जो फैब्रिक्स क्रिएट होते हैं, तो वहां पे कॉटन की उपयोगिता जो होती है बहुत ही ज्यादा होती है। आफ्टर दैट कोस्टल रीजन्स की अगर हम बात करें, कोस्टल रीजन्स एंड आइलैंड्स की अगर हम बात करें, तो कोस्टल रीजन से हमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो मिनरल्स भी मिलते हैं और फिश की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो मछलियों की रिक्वायरमेंट होती है, वो कोस्टल रीजन से पूरे ऑल ओवर इंडिया एंड सम ऑफ द अदर कंट्रीज आल्सो वी एक्सपोर्ट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वी गेट फिश रिक्वायरमेंट फ्रॉम द कोस्टल रीजन्स। एंड एट द लास्ट द थार डेजर्ट। ओके, थार डेजर्ट का जो रीजन है वो अपनी संस्कृति, अपने जो कल्चर्स हैं वो अलग तरह की विशेष महत्व रखते हैं हमारे देश के लिए। सो दीज आर द फिजिकल डाइवर्सिटीज ऑफ आवर कंट्री एंड दे ऑल आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। सभी एक दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं। कोई अपने आधार पर अकेला अगर कहा जाए कि सरवाइव कर ले, सो दैट इज नॉट important according to their life aspect, but when they are interdependent on each other, they can survive, they can grow well. Okay, and after this next point is we are having linguistic and regional diversity, religious diversity। धर्म के आधार पर जो हमारी विविधताएं हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सभी क्षेत्र में, हर देश के हर कोने में अलग अलग धर्मों के लोग निवास करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम सभी सर्व धर्म को क्या करते हैं, इज्जत देते हैं। ओके, इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। सेकुलर कंट्री का मतलब कि जहां पर सभी धर्मों को एक बराबर सम्मान दिया जाता है और सभी धर्मों को स्वतंत्रता प्राप्त है कि सभी लोग अपने स्वतंत्र तरीके से अपने जीवन यापन को सुचारू रूप से व्यतीत कर सकते हैं अपने धर्मों को मानते हुए। सो दिस इज एस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस डाइवर्सिटी। After that we are having linguistic and regional diversity। हमारे लैंग्वेज के आधार पर जो डाइवर्सिटी है, हमारे देश में 28 राज्य हैं। 28 तो नॉर्मल सी बात है कि 28 राज्य हैं तो 28 लैंग्वेज वैसे ही हो गए, बट अगर हम इंडियन लैंग्वेज में बात करें तो 22 लैंग्वेजेस आर प्रिस्क्राइब्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वी आर हैविंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज 22 लैंग्वेज, बट वी आर हैविंग मोर देन 22 लैंग्वेजेस इन आवर कंट्री। तो लिंग्विस्टिक आधार पे हमारे देश में बहुत ही विविध रूप है। उसके बाद अगर हम बात करें रीजनल डाइवर्सिटी की, क्षेत्र के आधार पर जो अलग अलग रीजन्स हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, उनके आधार पे भी हमारे यहाँ बहुत ही व्यापक विविधता पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की। इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफरेंसेस, पीपल लिविंग इन इंडिया आर इंडियंस फर्स्ट। दिस यूनिटी हैज बीन अ पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। People from all regions, religions and languages had come together to participate in our struggle for freedom. Some of our famous leaders such as Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Lala Lajpat Rai and Bal Gangadhar Tilak came from diverse backgrounds